perspective would be Introduction different, the we can questionnaire might be different. So with the same objective, the same topic, you might be focusing upon some agendas which is specifically going or being wondered in your head. For you, it might be important to research it, right? So we need to analyze our data depending upon the data we have, right? The first clause of data analysis is that the data needs to be checked out in conceptual research questions. What are we looking for? What is the theory talking about? The literature review, what people are talking about in this concept, that what affects this thing, or what are the things that need to be controlled while doing particular research in that area. Our research data itself, in terms who are we talking to? We are talking to employees, we are talking to bankers, we are talking to consumers, we are talking to internet users, right? So the sample frame is something that we need to keep in mind, right? And of course our biases. So if I am talking about say this AR VR facilities, so these try-on features on Nykaa, on multiple apps that we have, some may feel that it is of no use because until unless you try physically, it is different, and when you actually purchase it is different, right? So for a person who is maybe very much known to these all products, it might be very useful for them, but for us it might not be useful. Maybe we are not a frequent shopper of cosmetics or any other reason. So we would have a biasness because of our usage, because of our opinions as well. So our research framework is also inclined towards our opinions. So there are two approaches of research. One is deductive, one is inductive. I'll not focus upon the concept because this much must have been touched in hypothesis making and data collection part as well. But the concept is deductive is we go from broad to narrow in deductive. Inductive is from narrow to broad. So reverse funnel is deductive. To shorten the concept, I'll say if we understand the roadmap for quality research, so it is having multiple stages, right? From topic selection, purpose statement, to research question, to literature search, research methodology, and the design we will be choosing, the data collection tool that I'll be using. Then we frame our research proposals for any, say, PhD or for any project that we undertake, right? So we have an abstract concept as well, right? Then we go with collection and analysis of the data, and then we go, right? In the concept of research design, if we understand this in a cross-tabulation way, we have qualitative research, quantitative research, more publishable thing, research design at this point of time in 2024 is mixed method. The journals are expecting to use qualitative and quantitative both if we are targeting one journals or the higher rated A category journals or ABC, right? So and the fourth one is action research, which is not precisely for social sciences. It is more of scientific research, that the science research, the chemical research and everything, there applies the action research as well, right? So the point that we need to note here is that deductive approaches associated with quantitative, inductive approaches associated with qualitative. We will able to understand the concept of deductive, and so deductive is when we have objective in mind, we have some literature review, where there is the in terms when we do quantitative is when things are existing. If I am trying to evaluate say neo-banking, so I can evaluate on premises of IT-enabled banking services, mobile banking, internet banking. So in line with that, I can adapt that skill to neo-banking. But if I am talking about technology, metaverse, if I am talking about a new phenomenon, right? If you talk about these chatbots, right? So this is a new perspective in a way where I might go first qualitative and then I might go quantitative. So when I am talking about the exploratory research design, I might go for quantitative. So that is, I am reading things through which I am inducting, I am carrying out that this
variable might be important in this research, right? जैसे हम अभी बात कर रहे थे AR VR in makeup industry. So in that, skin type, skin color, these might be the moderating variables in my head, right? So is this true in concept as well? Is this the thing which is affecting of launch of these or are a barrier? So this is not yet researched, so we might go with qualitative. So we have to go with multiple interviews, focus groups, and then I'll arrive on something, right? But in where we adapt scales, where we have already a concept of phenomena existing, like if we talk about Technology acceptance model, if we talk about consumer behavior theories, if we talk about motivational theories, Maslow says there is a hierarchy that goes on. So we might go with the quantitative approach because we directly adapt that theory scale items and that we will use in our context to the new research that I am doing. Right? So we need to keep in mind deductive equals to quantitative, deductive equals to qualitative. So what data analysis technique would be used depends upon the data I am collecting. What type of relationship is examined. If I am having a dependent, if I have identified that I have dependent variables, there is a dependency of skin type. So how many variables are interdependent? If it is multiple relationships, I will say structural integration modeling. Then of course we know that we have multiple diaries of them as well. It's GSEM, it's DLSM, right? GSEM is more popular with the tool called MOS, right? DLSM has also introduced a feature of CSEM as well as DLSM. It is nothing technical in terms. It is the way of calculation is the हमारे जो क्राइटेरियंस हैं, जो हमारे assumptions हैं, जैसे एक अगर मैं वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो उसके 3 स्टेटमेंट नहीं, ठीक है, मैं वो तो स्किन टाइप हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है और मैंने उसमें पूछा कि डू यू फील दैट स्किन टाइप इज इम्पॉर्टेंट, सो मेरी डी से टाइप. सो आपने एक स्टेटमेंट इस पर आप मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाते, तो एट दैट पॉइंट माइट PLS है. अगर रिस्पॉन्डिंग सोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं शार्प टैंक में जो लोग गए हैं that have gone there, I am trying to evaluate that. इसमें मैं 100 से ज़्यादा respondents नहीं ला सकती. So it is very difficult to collect that data in that data. So that at that time as well, because of that limitation, because the sample size is less than needed, I understand, right? So if I am evaluating single relationship, I will use anecdotal correlation analysis or various analysis. But if I know that these are independent, I don't know which is affecting or not. मुझे नहीं पता कि स्किन टाइप इफेक्ट कर रहा है या नहीं. So I use factor analysis, cluster analysis, multi-dimensional analysis, correspondence, numerical correlation analysis with dimensions, etc. Right? I'll come to these one by one next time. So, but again we need to remember each data analysis technique demands unique way of data collection. अब जैसे मैंने स्किन टाइप पूछी, ठीक है, अगर आपने स्किन टाइप में पूछा है their स्किन टाइप, यूजर स्किन टाइप, या फिर आपने पूछा है कि आपको स्किन टाइप की वजह से आप ये नहीं यूज करते या यूज करते हैं वॉट एवर, राइट? तो आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है तो आप लिखकर स्किन इवैल्यूएट करते हैं, राइट? बट अगर आपने पूछा है मल्टीपल स्किन टाइप्स might use these facilities, right? So in that scenario, the analysis, the technique might or might not be applied. जैसे कि अगर मैं कहूँ अब डेटा कलेक्शन, अब मैंने कलेक्ट किया है लिक्विड, साइंस रिसर्च की बात करूँ मैं, और मैंने एक सॉलिड, एक गैस लिया है, right? So if I am applying some chemical, some other chemical, there might be a different reaction, right? If I am analyzing, अब मैं स्केल की अगर जैसे बात करें तो व्हाट इज द स्केल का हमारा लेना मतलब क्या है कि वेइंग स्केल क्या है? वेइंग स्केल लिक्विड का अलग है कि आपके केजी वेट के लिए अलग है, आपके लिए गैस के लिए अलग है, राइट? सिमिलर इज देयर राइट? So that's why we have, अगर मैं इसको अगर मेरे को एक सॉलिड को मेजर करना, I need a वेइंग स्केल, I need so my scale would be different, my analysis
हमें थोड़ा माइंड में ये भी रखना होता है कि हम क्या एनालिसिस टेक्निक, व्हाट आर मेबी माय गाइड इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी, राइट, व्हाट टेक्निक आई बी अप्लाइंग। तो उसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे को क्वेश्चन उस हिसाब से बनाना है कि आई एम एबल टू अप्लाई दैट एनालिसिस। ओके, सो इट इज समटाइम्स टू वे अराउंड, आई नीड टू go that way as well sometimes, because I need to keep in mind अगर it is specifically based upon some expectation। अगर जैसे मैंने जैसे आपको बोला A कैटेगरी या Q1 जर्नल्स या एक्सेप्ट करें मिक्स मेथोडोलॉजी का, तो ठीक है, तो अब मुझे कुछ ऐसा टॉपिक देखना पड़ेगा जो अभी तक यूज नहीं हुआ या जो नया टॉपिक है जिसमें ये दोनों मिक्स स्टडी यूज हो पाए, राइट। सो आई हैव टू हैव अ बैक वे अप्रोच एज वेल। उल्टा भी मेरे को सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे ये एनालिसिस टेक्निक लगानी है तो मुझे किस तरह का डेटा चाहिए, उस हिसाब से डेटा कलेक्शन होगा, उस हिसाब से मेरा क्वेश्चन। नो, इट इज फाइन एवरीवन। हाँ जी, एनी डाउट्स टिल नाउ? So we go forward. Now I will come to the techniques, right? So we have 17 SH. Excuse me, ma'am. Yeah. Excuse me. Sorry for the disturbance. No. For data analysis, just now you said that if data is below 100, we have to use some kinds of analysis techniques. Yeah. Like if we want to use more than 500 data. So for that analysis, can we go for? Yeah, we can go with 10 for that. So if we have limitation, हमेशा हमारे डेटा जितना ज़्यादा उतना अच्छा, more the better। क्योंकि अगर मैं एक पॉपुलेशन का हाइट देखना चाहती हूँ तो मुझे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन मिला उतना ज़्यादा एवरेज अच्छा मिलेगा। Like if I want to see the parents' attitudes towards some kind of a thing, their experiences. So in that kind, what type of test I can use, ma'am? Ma'am, of course it can be evaluated through parents, and we can have more data collected as well. We can of course go target for 500 as well. आप SEM लगा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी टेक्निक्स लगा सकते हैं। I'll be coming to these techniques to be able to get a better understanding of how to go about it। आप जैसे अगर आपको अगर मिक्स्ड मेथोडोलॉजी लगानी है तो आपको पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्योंकि आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि पेरेंट्स को क्या दिक्कतें आती हैं, तो आप उनसे थोड़े इंटरव्यूज लोगे, थोड़े आपसे क्वेश्चनिंग करोगे, आपका खुद का कुछ ओपिनियन होगा, परसेप्शन होगा, उससे आप वो मैप करोगे, आप लिटरेचर से मैप करोगे, एंड देन यू माइट थिंक हाँ ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, सो यू विल अडैप्ट द scheme and carry out further analysis. Okay? So to be able to know about the analysis technique that you present, I have a list of these 17. We have many more, not much more, but I have tried to cover majority of techniques that can be used in social science research. So I'll be covering them one by one. From first quantitative, I'll be covering then quantitative. Okay, ma'am? Thank you very much. So given the limitation of time, I will not touch upon these analysis techniques, but I will cover all of these in a short manner, so that we are able to cover all of these techniques. So these are the 17 essential types of data analysis methods. First is data mining. So when we talk about analytics, when we talk about data, right? So you have also always heard before data analysis we go with data cleaning. Data cleaning क्या है? Data cleaning is आपने एक क्वेश्चन करवा दिया, बट आपको उसमें से उसमें कुछ मिसिंग रिस्पॉन्सेज होंगे, कुछ ने बिना देखे आपके सारे पे मार्क कर दिया होगा। As in fact I'm talking about a Likert scale, so 1 to 5 options थे, उन्होंने सारा का सारा 4 मार्क कर दिया। So we can remove such responses, right? जहाँ पे मिसिंग है, आपने इंटरव्यूज दिए, कुछ क्वेश्चंस नहीं आंसर दिए, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? So that's also one thing, right? So these are some elementary things that we do.
After that, once my data is final, once my data is clean, once my data sheet is perfectly coded as well, right? और अब जैसे अगर मेरे को कोई एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करना है, I might use these softwares. अब एक्सेल भी अगर मैं करूंगी, I would not write the complete question and their response. उसको मुझे कोड देना पड़ेगा. अगर मैं बोल रही हूँ स्किन टाइप, मेरे को उसको ST लिखना पड़ेगा, स्किन कलर SC लिखना पड़ेगा, right? So I'll say so I'll abbreviate it and write those codes for my better understanding in some paper, in some documentation needs to be done for that coding part. ठीक है, तो जब ये सारी कोडिंग, डेटा क्लीनिंग और सब कुछ हो जाएगा, we can start with data mining. तो डेटा माइनिंग क्या है? अब हमें करना क्या है? हम डेटा एनालिसिस कुछ नहीं है, हमें पैटर्न इवैल्यूएट करना कि लोग कैसा सोच रहे हैं. सोशल साइंसेज इज ऑल अबाउट how the society is behaving, right? So we need to think of, जैसे if you see this illustration, आपके आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप वही चीजें आती हैं जो आप देखना चाहते हो. क्यों? क्योंकि they have found out your user usage data, आपकी कुकीज उनके पास है, आपकी यूसेज पैटर्न्स उनके पास है. उसके हिसाब से उन्होंने माइंड करके आपको क्लासिफाई कर रखा है कि आपको कुकरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, आपको फैशनिस्टास को देखना पसंद है, आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की रिलेटेड चीजें आपको पसंद है, आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड पसंद है, राइट? So they have gathered this information based upon your data and they are giving you what you like. Yes. So मेरा एक्सपीरियंस तभी अच्छा होगा जब मेरे को जो देखना है तभी. आप क्यों हुक्ड रहोगे सोशल मीडिया पे जब आपको वही चीज छोटा सा एक पता नहीं होता अडेप्टर मैंने लगा रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिल नहीं रहा. We need to evaluate a pattern, right? तो हमें हमारी टेक्निक जो भी होगी उससे एक पैटर्न निकल के आना चाहिए. जो अब मेरे को डेटा दिख रहा है उससे मुझे नंबर्स के थ्रू, एवरेज के थ्रू एक चीज पता चलेगी, right? इसे बाहर ले जाओ, जल्दी पंखा चलाना. That kind of strategy. Then comes neural networks. अब अगर हम बात करें neural networks, there is a very famous technique called ANN, artificial neural networks, right? वो हम कब यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं जब हमें कुछ नहीं पता कि ये वेरिएबल इसको इफेक्ट करेगा नहीं करेगा. जैसे मैं बात कर रही हूँ AR/VR की यूसेज को, कलर यूज इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, राइट? सो आई नीड टू थिंक ऑफ कि अच्छा, सो ANN क्या करता है, मल्टीपल हम उसको इनपुट देते हैं और मल्टीपल बार रन करता है. हर बार जितनी बार रन होता है वो मुझे बताता है ये इस 10 के हिसाब से इसको इफेक्ट कर रहा है, 10 रिस्पोंडेंट्स के हिसाब से इसको इफेक्ट कर रहा है, फिर अगले 10 के हिसाब से ये चीजें इसको इफेक्ट कर रही है, ये नहीं कर रही है. स्किन कलर नहीं इफेक्ट कर रहा, स्किन टाइप इफेक्ट कर रहा है. फिर मल्टीपल लेयर्स के बाद, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद एक आउटपुट आएगा, राइट? सो इट इज सिमिलर लाइक हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, राइट? सो इफ द बेबी इज आस्क्ड व्हाट इज इट, राइट? So अगर हम बात करें, the brain of a baby is not that developed, right? So he would evaluate, right? So this person has 4 legs, has got a tail, right? So with that thing, they have some options in the mind as well. That this is table, bed, elephant, horse, dog, cat. If you guys, I'll ask you to, you will be able to relate. कई बार बहुत सारे बियर्ड वाले अगर अंकल देखते हैं बच्चे तो बोलते हैं या डर जाते हैं या फिर they associate with somebody else, right? So वो क्यों है? क्योंकि उनको बियर्ड से रिकॉग्निशन डर से है, उनका वो बियर्ड का रिकॉग्निशन शायद उनकी मामा से है, उनका बियर्ड का रिकॉग्निशन शायद उनके पापा से, right? So they associate a feature with something, right? तो ऐसे ही वो फीचर रिकॉग्निशन हो रहा है और फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करके आउटपुट देता है. ऐसे ही हमारा ANN वर्क करता है एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट वर्क करता है और उसका जो आउटपुट कहता है कि ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, फाइनल इस चीज का इफेक्ट आ रहा है. ये कब यूज करना है? जब बिल्कुल भी नई चीज है. जैसे मैंने अभी आपको बात करी, स्किन टाइप, स्किन कलर, कोई नहीं बात कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं है. मैं जो सोच रही हूँ अब, जैसे फॉर एग्जाम्पल
देयर कैन बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट. जो चीज़ नहीं है, राइट, जो चीज़ नहीं लॉन्च हुई है, लोगों ने अभी रिसर्च करनी शुरू की है, राइट. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू माइट नॉट हैव वेरिएबल्स, आपके पास स्केल आइटम्स नहीं होंगे शायद, राइट. फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट डू ANN. अगर सिर्फ क्वान्टिटेटिव टेक्निक आपको अप्लाई करेंगे, आप ANN अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बाद फर्दर स्टेप्स करेंगे. देन कमिंग टू फैक्टर एनालिसिस. जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, पर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, राइट. जैसे पद्मा मैम ने बात करी कि पेरेंट्स का एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं, ठीक है. तो पेरेंट्स के एटीट्यूड बच्चों को लेकर हो सकता है कुछ. then there it might be school pressure, it might be the society expectation, it might be future related, right. तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, राइट. तो फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, वो बहुत सारे वेरिएबल्स को डायमेंशंस में फैक्टर्स बना देता है, रिड्यूस कर देता है. सो वी यूज फैक्टर एनालिसिस for reducing multiple variables that might be there in the literature. It would reduce to some variables, right. So if I'm searching what affects job satisfaction, right, so it can be work-life balance, it can be the comfort zone attitude, it can be leadership that I am influenced with, right. My mindset, I might have a positive mindset, I am maybe an initiator, I might be a overthinker or whatever, right. So उनके हिसाब से उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा, राइट. सो the factor analysis आपको डायमेंशन रिडक्शन में काम करता है. अगेन जब हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड चीज़ होती है तब हम फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करते हैं. क्लस्टर एनालिसिस. अब मुझे पता है कि अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, राइट. If I want to associate, if I need to see how many types of parents exist, ठीक है. तो मैं I have a criterion working, not working. I have a criterion of maybe the ones who are highly educated or less educated or medium, whatever, right. There might be some who have family, who come from joint family, who come from nuclear family, right. So मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, राइट. उनके हिसाब से I might create a cluster and I might create a chart through cluster analysis, and the cluster analysis would help me group the customers. So generally this is used in the practical approach. Corporates use करते हैं इसको for identifying which cluster is still untapped, right, which can be tapped related to this, right. किसको, जैसे हमने अभी बात करी डेटा माइनिंग में, डेटा माइनिंग में भी एक एल्गोरिथम है which identifies clusters, right. सो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी यही चीज़ें हो रही है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कुकिंग शोज देख रहा है, कौन कैसा कंटेंट देख रहा है. तो बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कंटेंट दे आर, राइट. तो उसमें आपने क्लस्टर बना रखे हैं कि इसको ये देखना पसंद है. एल्गोरिथम डिटेक्ट कर देता है कि दिस इज द क्लस्टर, so they'll push that content to this kind of distribution. Now coming to cohort analysis. What the term cohort means? All users who perform common event at the same time. ठीक है. So if we talk about the Ayodhya में जो राम मंदिर बना था, right? So at that time कितने लोगों ने सेम टाइम पे जो बाल राम जी की जो मूर्ति थी उसका डीपी अपने वॉलपेपर पे लगाया या व्हाट्सएप डीपी लगाया, राइट. सो at the same time all kinds of customers are performing a particular activity. If we talk about e-commerce context, ठीक है, अभी इस टाइम पे मेरे पास 6 लोग हैं जो ये चीज़ सुन रहे हैं, राइट. आफ्टर अ वाइल डे 2 में ये चीज़ देख रहे हैं. अगर हमें एक पर्टिकुलर कार्ड की, एक पर्टिकुलर आइटम की बात करूँ, एक शर्ट की बात करूँ, राइट. पहले इस शर्ट में 6 लोग थे, डे 2 पे 4 लोग देख रहे हैं, देन डे 3 पे 3 लोग रह गए हैं जो उसको देख रहे हैं और दे माइट बी इंटरेस्टेड इन टू बाय, ठीक है. तो उनको वापस खुश होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप क्या there are these items waiting in your cart और you have wish listed it और बाकी लोग खरीद रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. सो व्हाट आर दे डूइंग,
based upon the cohort analysis, based upon your usage pattern, customer usage pattern, वो identify कर पा रहे हैं, उस हिसाब से decisions ले रहे हैं, based so that you are recalled, you are reminded to buy that item. Okay. So this can be applied in multiple research contexts as well, where we are trying to evaluate a particular pattern. Coming to time series analysis, so we can have this time series analysis with multiple softwares. Even Excel can do this. This is a snapshot of Tableau, जिसने which is nothing but मेरे पास Excel items है. मैंने Excel items से column में लेके गई हूँ. It is drag and drop. It is very simple software and best for data visualization. हमें सुंदर से charts दिखाने हैं हमारे project में. We can use Tableau for that. So it is Tableau online, Tableau public can be installed. So it is a paid software, but you can use Tableau public और वो आप install कर सकते हो अपने system पे. Tableau public आपके सॉफ्टवेयर में आता है और क्लाउड पे भी रहता है, which is good for us. It doesn't occupy much space. So we'll be able to use it on cloud itself. System पे ही रहेगा, but the storage is in cloud. So we drag and drop year and measure values, जो हमारा टेम्परेचर की वैल्यूज है, and it would create, अब उसमें ईयर के हिसाब से मल्टीपल मेजर वैल्यूज को अब इसके साथ मैंने एक फिल्टर लगा दिया है ऑफ मंथ्स, राइट. सो मंथ वाइज, मल्टीपल मंथ वाइज and year wise, I am able to see the टेम्परेचर, right. So it can be done for stock market prices, it can be done for number of followers on a social media account, it can be done for any quantitative secondary data. ठीक है, ये हमारा कब कलेक्ट होता है. आई होप वी आर क्लियर. जब हम क्वेश्चनर से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा और इंटरव्यू से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, दैट इज प्राइमरी डेटा. जब मैं DSC की वेबसाइट से स्टॉक मार्केट के प्राइसेस दिखा रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, सो दैट इज अगेन सेकेंडरी डेटा. जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है मल्टीपल जगह पे, बिग डेटा कॉन्टेक्स्ट, हमने कितना यूसेज किया, मैंने कितने पेजेस पे देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने कितने जगह पे विजिट किया, कितने अकाउंट्स क्रिएट करे. सो दैट इज ऑल सेकेंडरी डेटा. थर्ड पर्सन आई डी हैव सब डेटा एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम दैट. Going to decision trees. So if I am evaluating, so I have an example related to Padma ma'am as well. So if I am saying that if we have some parents visiting, so I might go for cinema, or if I am so if my parents are not visiting, so depending upon the weather, and if it is sunny, I might play tennis. If it is raining, I might go for a stay in. What leisure activities I am doing, it is about that, right? So if we have the income class, so you might go for movies or for shopping in metro. So it is just a hypothetical example to represent how your decisions are taken. इसका अगर फॉर एग्जाम्पल और कंटेक्स्ट में, तो अगर हम ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सो इफ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा, तो आपको किस तरह की एड्स आएंगी is depending upon what have you like as well, right. अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट कर रखा है, एक पर्टिकुलर पेज को फॉलो कर रखा है, जैसे रिक्रूटमेंट्स या फिर जॉब पोर्टल्स और गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो दे नो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल यू बिलोंग टू, सो उस हिसाब से आपका दैट. Let's come into concurrent analysis. Again, it is used by multiple digital channels based upon the category features. आपने एक शॉपिंग वेबसाइट, आपने मल्टीपल चीज़ें दिखाई, वो अपने आप कस्टमाइज करने का काम. How can we do that? So that you can do all that, right? If you have used a particular color, if you have used a particular type of mobile phone, if you have used operating systems, screen size, camera resolution, आप ये सब फीचर्स सेलेक्ट करिए, तो इसके बहुत आसान है आपके लिमिटेड फीचर्स देखिए आपके पास आपकी रेंज में कौन सा प्राइस है, राइट. So if I have chosen limited features, I have multiple more options, right. तो हमें ये क्या क्या दिखेगा is to be decided, right. So for deciding what will be visible, a conjoint analysis research में भी यूज होती है to recommend. जैसे होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री में ये होती है, जैसे हमें all our researchers has to have a recommendation as well. All our researchers
need to have some kind of managerial implications. तो मैनेजरियल implication हमारी कैसे होगी जब हम कुछ फायदे की बात बताएंगे कॉर्पोरेट को इंडस्ट्रीज में। तो होटल इंडस्ट्री में अगर मैं बताऊं कि अगर एक कस्टमर कोविड के बाद में किसी लेजर के लिए आपके होटल में आ रहा है तो क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा, राइट? सो if the customer is coming in summer season and if it is a holiday season, if it is this season, so what kind of expectations, what kind of experience is it? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करें, क्या एक्सपीरियंस पे काम करें ताकि उनके टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो। गेटिंग इट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज आप कुछ फैक्टर्स निकाल के दे रहे हो उनको, अगर ये आइटम्स हैं तो आपको ये करनी चाहिए, अगर ये आइटम्स हैं तो आपको ये। देन कमिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस। कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस क्या होती है? So if we are talking about, so इसमें दो तरीके की टेक्निक्स है, one is multi-dimensional scaling and one is correspondence. So they are very much similar in context. दोनों इस तरह का मैप बना के देते हैं, राइट? बट इट इज मेरे पास आगे डिफरेंसेस भी हैं, आई कम टू द डिफरेंसेस लेटर, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस. If I am trying to identify which things are majorly used, which tasks are majorly done at a particular period, right? So I'll evaluate, I'll get these numbers, all your things, this is RStudio's output. तो अगर मैं ये डेटा देती हूँ RStudio को और उसको बताती हूँ क्या काम ज़्यादा वाइट कर रही है, और हेल्पर्स आर डूइंग or the husband is doing, all of us in the family are doing well. ठीक है, so we have everything from laundry to days and everything. So based upon this data, ये जितना बड़ा सर्कल है उसका मतलब ये काम ज़्यादा रेगुलरली होगा, right? So we have data for each of the tasks, we have data for each of the activities. Correspondence analysis क्या करके देगा, मुझे एक ऐसा ग्राफ बना के देगा जिसमें वो ये हमारे जो कैटेगरीज है वो भी प्लॉट करेगा और टास्क को भी प्लॉट करेगा। जो ज़्यादा रेगुलर है, जैसे अगर हम देखें हॉलिडे का सर्कल दिखता, लॉन्ड्री का सर्कल दिखता, जो रेगुलर है वो दूर की तरफ होंगे ग्राफ में, और जो कम रेगुलर है वो पास में। सो इससे क्या हेल्प होती है? सो दिस इज सिमिलर ग्राफ इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्केल। अभी कलर के हिसाब से मुझे बता रहा है कौन सा ज़्यादा यूज होता है, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका कितना है, राइट? So contribution from heavy scale to low scale, if you understand, red is more, this is heat map context. ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है रेड वाले काम जो हो रहे हैं वो रेगुलर हो रहे हैं और ये वाले काम। सो in short what is done jointly, हमें इससे भी पता चल रहा है हॉलीडेज की प्लानिंग jointly हो रही है। यहाँ पे इस ग्राफ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो रही है, बट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन वी गो फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, which is nothing but we kind of evaluate, divide कौन सा, it is again data based, जहाँ पे मेरे पास यूसेज लुकट स्केल में नहीं काम करेगा, परसेप्शन पे ये एनालिसिस काम नहीं करेगी. दिस इज मेजरली when we have task number associated. ठीक है. Now coming to मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, ये कब यूज होती है? मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग यूज होती है जब मुझे पोजीशनिंग करनी है मल्टीपल ब्रांड्स. मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास 5-6 गाड़ियाँ हैं लाइन में, तो मल्टीपल डायमेंशंस में वो कौन सी कहाँ लाए करती है. तो ये कंपैरिजन टूल्स और ऑनलाइन अवेलेबल, तो कंपैरिजन टूल्स भी क्या कर रहे हैं, वो डिग्री सब टेक्निक्स लगा रहे हैं टू वैल्यू, राइट. पर इफ़ यू अंडरस्टैंड अगेन नंबर्स और फीचर्स के हिसाब से तो सब कोई टूल लगा सकते हैं, पर अगर हमें परसेप्शन चेक करना है, हमें सोसाइटी हम सोशल रिसर्च रिलेटेड, एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड बात करें, तो मुझे मल्टीपल ब्रांड्स को इवैल्यूएट करना है और देखना है कि क्या ज़्यादा चीज़ प्रेफर्ड है. और पोजीशनिंग के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग के लिए यूज होता है. और जैसे कि अगर आप ये ग्राफ देखें, नॉट गोइंग टू नेम, आई कम टू द एग्जांपल. जैसे ये मैप में ये एरिया का है, सो ये मैप क्या करके देता है हमें, हम कैन आइडेंटिफाई अ गैप इन द मार्केट कि
डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 ये पॉजिटिव एरिया में यहाँ पे कोई भी नहीं है जो यहाँ पे पहुँच पाया है. दिस पॉजिटिव एरिया which is closer, this is still far, but more closer items there is nobody, right? So we need to maybe these brands can focus upon to come onto this region, और अगर कोई नया लॉन्च होता है तो यहाँ पे उसको बैक करना चाहिए. So we are identifying the gap in the market using this perceptual map, positioning map. अब ये क्या है, ये रिसर्च अब किस तरह से चलती है. अगर हम बात करें, अगर मैं उनको पूछती हूँ दिस इज अ रिसर्च रिलेटेड टू व्हाई वुड अ स्टूडेंट कम टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो एक कॉलेज चूज करने से पहले क्या क्या चीजें, राइट. सो दिस इज माय रिसर्च प्रोजेक्ट व्हिच वाज अंडरटेकन अंडर माय इंस्टीट्यूट with Vivekananda Institute of Professional Studies. So we have these competitors in the market: Technia, Webs, Surajmal, GEMS, Dias, Agresen, and IITM. In the area of we are from School of Business Studies. We have BNC. तो BBA, BCom और कौन से कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं और जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं. तो मैं पहले पूछती हूँ उनसे कि आपको टेक्निया और विप्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉलेज छोड़ो, मैं अगर बोलूँ फ्रूटी और थम्स अप कितनी क्लोजर है, ठीक है, तो आप बोलोगे कितना क्लोजर नहीं है, फ्रूटी का एक आइडेंटिटी है, राइट. सो इट विल बी फार. उसका डिस्टेंस, अब ये ब्रांड्स को क्या है, ये डिस्टेंस होगा. मैंने पहले लोगों से क्या पूछा है, फिर उनका एवरेज दिया जाता है, राउंड ऑफ करके उसका एवरेज दिया जाता है. अब मैं जितने लोगों से पूछूँ एक परसेप्शन पूछिए तो आपको सपोज दिस टेक्निया ये जो हमारा ट्रायंगल है वो सेम ही रहेगा. जस्ट इवैल्यूएट दिस अपर ट्रायंगल, वो फिर रिवर्स NO टेक्निया और विप्स में आपको कितना डिफरेंस हो गया. टेक्निया और सूरजमुल में घर पे फोन करके बोल टेक्निया बहुत दूर लगा, जो मेरा टॉयज आएगा उससे कोई ना छेड़े. सो बेस्ड अपॉन दोस अब ये पूछते हैं. अब अगर मैं उनको बोलती हूँ बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पास, वो उनके पास जवाब बेटर होगा. अगर मैंने उनको पूछ दिया अच्छा जो फ्रूटी और उसमें, अब मैंने माइंड में लगाया कि एक डंडा रख के जब पूछूंगी सारों से आया कि वो किससे बनता है, वो ठीक है. ये मेजर है, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. पर हो सकता है और पेप्सी को आप कलर से आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको कलर बोल रहे हो, आप हो सकता है सोच रहे हो कि इसकी बॉटल शेप, राइट, पिछवाड़ा ना उठता उठती वे बॉटल शेप लगाना पड़ा तो आप उस हिसाब से सोच रहे हो. तो मैं पहले बिना कोई वेरिएबल दिखाइए कौन सी साड़ी पसंद आ रही, तुझे कौन सी अच्छी लगी, वेरिएबल देके फिर मैं उनसे पूछूँ अच्छा मुझे पता है इसका सेक्टर में कौन सा बेस्ट है, वो सिल्क में मम्मी मना कर रही थी. फिर मैं पूछूँ रैंकिंग में कौन सा अच्छा है, फैकल्टी में कौन सा अच्छा है, प्लेसमेंट्स में कौन सा अच्छा है. देन सो अब इन दो को मैप, ये डेटा ये दोनों डेटा जाते हैं SPSS में, IBM SPSS में, और ये आउटपुट आता है मेरे पास विच इज दिस परसेप्चुअल मैप. इसमें निकाल के दिया. अब इसमें बस ये है जो हमारा करस्पॉन्डेंस एनालिसिस है उसमें डायमेंशन को निकाल के देता है, पर इसमें हमें डायमेंशन सोचनी पड़ती है बेस्ड अपॉन दिस, बेस्ड अपॉन ये दोनों हैवी साड़ी है बढ़िया. किस किस में वेब साथ में था, वेब साथ में था इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी ज़्यादातर है वैसे, प्लेसमेंट, प्रॉक्सिमिटी, तो मैं सिर्फ वेब्स के बेस पे नहीं कर सकती. सो लेट्स सी इसका गुंडू का मर्डर करो. बेस्ट टेक्निया यहाँ पे है, ठीक है. मैं पता हूँ कब से फ्री हूँ, फैसिलिटीज एंड फैकल्टी, ठीक है. मैं 8 अप्रैल से फ्री हूँ. तो मुझे पता चल रहा है फैसिलिटीज और फैकल्टी को मैं साथ में ले सकती हूँ चाहे, राइट. 13-15 दिन की जब छुट्टी हुई या फिर मैं फिर 15 दिन के बाद हमारे फिर रिसर्च निकल के आया नहीं, 8 मई से फ्री हूँ. वन क्या है विच इज फैकल्टी प्लस रैंकिंग प्लस प्लेसमेंट, राइट. और डायमेंशन क्या है, फैसिलिटीज, प्रॉक्सिमिटी, प्रेफर्ड लेवल ऑफ ये कॉलेज वाले हो ही ऐसे हैं, राइट. तो हमने इसको नाम दिया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखता है बच्चा और कॉलेज लाइफ देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कितनी है, कितने हैं, कितना घर से पास है, राइट. सो एक इजी ऑफ एक माइंडसेट के साथ जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, और मेरे को क्या है मना पहनने का मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे, राइट. सो दीज आर द मल्टीपल परसेप्शंस ऑफ द स्टूडेंट वुड लाइक टू. सो
we can use these for multiple contexts. हम brands को associate कर सकते हैं, हम किसी भी सब बहुत इन लोगों को बाहर भगा रखा, सेशन चल रहा ना मेरा। अगर मुझे so how many brands I can evaluate? So if it goes beyond 7, right, I'll have to go with 3 maps. तो मेरे 3 मैप बन जाएंगे, 1, 2, 2, 3 and 1, 3. getting it? X, Y, Y, Z and X and Z. मैं सोच तो रही थी कल आने की, पर मुझे याद आया इसकी छोटे की वैक्सीन भी लगनी है ना अभी इस महीने 25 तारीख को। टिक्का भी लगेगा, कई काम लग गए अर्जेंट, अगले हफ्ते सोच रही हूँ। इसकी डेट भी तो नहीं आई अभी, तो यूँ कह रहे हैं जून में होगा, जून में भी कब होगा यूँ भी नहीं पता। थोड़ा डिफरेंस है, एक रिलेटेड डिफरेंस के काम करता है जब वो टेक्निकलिटी करता है। कब आएंगी? रोजाना बैठे हैं। अगर हम बात करें फैक्टर एनालिसिस की, अगर हम बात करें साइंस की, तो आखिर में हमने सबने रिग्रेशन की बात की है। अभी रिग्रेशन होता क्या है? There is a concept of correlation which is R. There is a concept of regression which is R square. तो correlation क्या है? correlation मुझे बताता है relation है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली में कितने उसे भी मजा आता होगा जब और कितने मर्डर हो गए, तो आपको माइंड हमें रखना है माइंड कि ये दो आपस में रिलेटेड है, पर भी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मर्डर्स भी इंक्रीज हो, तो वो बोलेगा पॉजिटिव कोरिलेशन, पर लिटरेचर कहेगा ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, सुबह को तो कोरिलेशन क्या है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोरिलेशन इतना जस्टिफाइबल नहीं है, राइट? इसलिए हम रिसर्चर्स में कोरिलेशन वैल्यू को लोग ये भी तो हराम है, वहीं इसी में बैठने को जाते हैं। ये बता रहा है रिलेशन है या नहीं, तो अगर दो चीजें उसको बढ़ती दिखेंगी तो वो बोलेगा पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो दोनों रिवर्स दिखेंगे तो वो बोलेगा एक बढ़ेगी एक कम जाएगी तो वो बोलेगा नो कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन हमें रिलेशनशिप इंक्रीज होगी ये बताता है, तो इट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव और देन कमिंग टू रिग्रेशन एनालिसिस, तो R स्क्वायर जब हो जाता है, तो अगर मेरे पास 0.5 वैल्यू आ रही है तो 0.25 इनटू स्क्वायर 0.05 तो 0.25 इनटू स्प्लिट वाला हुआ। इसका क्या मतलब है, अब जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें 2% मिलता है ऐसा, राइट? 25% ये विंडो इम्पैक्ट आ रहा है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, अब मुझे लिटरेचर से देखना है कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा है। अगर मैं बोलूँ प्राइस एंड सेल्स, और या फिर अगर मैं देखूँ मार्केटिंग एफर्ट्स एंड सेल, एडवर्टाइजमेंट का एफर्ट, सेल भी हो रहा है नहीं हो रहा है, प्राइस कम कर रही है तो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को इफेक्ट है। क्या बताओ, पूछना पूछ। नाउ लिटरेचर ने बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। ये कहता है कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूँ तो डिमांड बढ़ेगी। चल मिस्टर पैसे इकट्ठे कर ले, तेरे तो लिए एनजीओ मैंने शुरू करवा लिटरेचर दूं। थोड़ी से पूछा कि क्या इफेक्ट करता है, तू भी अपनी एनजीओ का काम शुरू कर तो दे। मैंने उस हिसाब से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करा। फिर मैं उसको डालती हूँ सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में एक्सेल, आर, एसपीएस, जो भी चल रहा भी कर रहे हैं, आखिर में जो मॉडल फिट बता रहे हैं तो आर स्क्वायर हम देखते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्यों देख रहे हैं, हम देखते हैं कितना मेरे इंडिपेंडेंट जो कह रही थी उसको तो पहले भेज दो, आउटपुट क्या है। हाँ ठीक है, इंटेंशन, यूसेज, जो भी है कि लोग खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लोग सस्टेनेबल जीना चाहते हैं नहीं चाहते, खेलने के बाद आगे लग रही है होना चाहते हैं। मेरे पास तो दो बैट है, नाना भी कह रहे बैट बनवा ऊपर जो मैंने मेरे पास दीदी 2 बैट है, एक बैट पे दो कहाँ 3 होंगे। हाँ वो कहाँ इसे क्या हुआ, उसके बाद हमें देखना है कपड़े पार्ट ऑफ योर फॉर्मल रिसर्च डिजाइन। जब मैंने एक्सप्लोरेटरी कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया कि इस तरह से बढ़ रहा है, अगर टॉयलेट सर्विस देख सारे कपड़े गिरा दिए झट अलमारी के। there is something which is causing an effect on something. So उसका effect कैसे लाने दो, ला दिखा, मैं पहनाऊँ कपड़े जल्दी जल्दी।
Now coming to गुड नाइट। अब जैसे कि मैंने बोला qualitative ऐसे नहला के लाइए ऐसे। ऑर्डर हमारे पास बहुत सारा कहानी है, उससे हम कुछ इवैल्यूएट करके so an evaluation of companies unquantifiable aspects such as management style, worker loyalty, जो चीजें नहीं पता उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट वन आउट ऑफ विच इज टेक्स्ट एनालिसिस। तो हमारे पास एक टेक्स्ट है, मैंने इंटरव्यू किए, उसको मैंने एक डॉक्यूमेंट में डाला। अब इंटरव्यू किए, हर का परसेप्शन अलग होता है, अब कैसे एनालाइज। तो वी वुड प्रिपेयर द टेक्स्ट, हर क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन सेम होने चाहिए, एक कॉलम में डालने हैं, एवरीथिंग प्रिपेयर द टेक्स्ट। Then I'll evaluate the extract candidate sentiment during quiz. अब किसी कुछ हमारे पास थे जो पॉजिटिव है, जा ऐसा जाओ बाहर जाओ, अभी इतना सेशन चल रहा है, इतना मत रहो यहाँ, जाओ जाओ जाओ, चल बाद में करूँगी बात। ठीक है, तो आई हैव इवैल्यूएटेड द नॉलेज, मैंने हो सकता है ग्रुप अलग कर दिया, या आई हैव इवैल्यूएटेड देयर आर सम तो उसके हिसाब से हम एल्गोरिथम लगाते हैं और फिल्टर आउट करते हैं एल्गोरिथम को, और उसके हिसाब से पैटर्न निकालते हैं। ठीक है, so we'll start. So this is the complete process that I'm talking about. It can be done in step-by-step process, which is through the next, which is content analysis. Now this is an output of an app data of our previous cycle. जिसमें एक 5.3.1 क्राइटेरिया है जो कहता है कि आपका बच्चा यहाँ से पास होकर कौन से कॉलेज में जाता है। सो दे इवैल्यूएट हाउ मेनी पीपल गो फॉर हायर एजुकेशन, हाउ मेनी पीपल गो फॉर, हमारे इंस्टीट्यूट्स का क्या आउटपुट है। तो ये दिस इज वन क्राइटेरिया व्हिच इज टॉकिंग अबाउट कहाँ जाते। सो नाउ आई हैव 7,000 बैच ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 year, right, at a time, right, who are graduating. So we have multiple columns, and if I represent to the committee which is visiting our college, it will be very vague representing कितना बच्चा, we can only represent percentage, ठीक है, जो कि कई बार अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन। हमें नहीं पता होता बच्चा कहाँ गया, कई बार बच्चा नहीं बताता, ठीक है, बट the ones who have gone will go unnoticed. So content analysis is the technique जहाँ पे वो बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा बात है। अब मैंने कोई इंटरव्यूज लिए, किसने किस बारे में बात करी ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AR and VR, तो वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी, कॉस्ट और अनेबल टू यूज़, ईज ऑफ यूज़ नहीं है, उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, लोड ज़्यादा होता है, इंटरनेट ज़्यादा खाता है, वगैरह 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 बहुत सारी बातें करती हैं उस इंटरव्यूज में। तो मुझे देखना है कि उसमें से ही फैक्टर्स निकल सकते हैं, राइट। There are multiple apps. If you want, I can share the links as well, through which you can create online tools हैं जो 5 मिनट में आपका, अगर आपका डेटा रेडी है, आपको उसकी देखिए पूरी डेटा रेडी, but at our place, because it will, अगर मैंने ये देखो मानदता के यहाँ पे देना है, उनका नाम ही रतनपाल सिंह है, लेकिन गाँव में ना मानदता के नाम से जानते हैं उनको। तो ये क्या होता, यूनिवर्सिटी अलग चला जाता, दिल्ली अलग जाता, और अब सबसे ऊपर क्या दिखता है, सबसे यूनिवर्सिटी। So मैंने राहुल चौहान का घर जानते हो? I have capitalized नहीं जानते? Queen's Mary College London, तो मैंने QMCP किया, राहुल चौहान, कृपाल चौहान, right, so that I'm able to read that as well। और ये अलग भी ना जाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मंदिर पड़ता है ना चौहानों में, ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले ये भंगे आते हैं, भंगे की तरफ से जब अंदर की तरफ जाओगे आप, कितनी बार गया बच्चा, वहाँ पे बैठक पे किसी से भी पूछ लेना मानदता का घर, और उसके भी कहीं से आप एक ट्रांसक्रिप्ट हो, वो आपको वर्ड काउंट भी निकाल देगा। जब वहाँ पहुँच जाओगे मैं फोन कर देना, मैं OTP बता तो वो वर्ड काउंट निकल के आ जाएगा, आपको वो शीट अपने फोन से में डालनी है जो वर्ड क्लाउड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड क्लाउड, ठीक है। तो आपको वर्ड क्लाउड बना के दे देगा। तो थ्रू दिस आई एम एबल टू रिप्रेजेंट कि हमारा बच्चा बाहर भी जाता है, लंदन जैसी जगह पे भी जाता है, मुंबई भी जाता है, जोधपुर भी जा रहा है, IIMs पे भी जा रहा है, अगर जा रहा है तो, राइट। सो आई एम एबल टू रिप्रेजेंट कहाँ पे मेरा ज़्यादा बच्चा जा रहा है, ठीक है। देन कमिंग टू थीमेटिक एनालिसिस,
अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है वो बहुत डाइवर्स होता है, बहुत बड़ा होता है एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट टू आइडेंटिफाई, राइट. सो थीमेटिक एनालिसिस किया जाता है. देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक NVivo which can do your thematic analysis very easily, right. आपको थीम्स निकाल के देंगे, जैसे कि रिसेंटली हमने एक स्टूडेंट रिसर्च करी थी, प्रोजेक्ट किया था जिसमें बच्चों ने देखना चाहा था कि शार्क टैंक कितना एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन देता है. आई एम अ व्यूअर ऑफ शार्क टैंक, उनको कितना वो मोटिवेट करता है कि मैं भी एक कोई ऐसी एंटरप्राइज करूँ जो शार्क टैंक को रिप्रेजेंट कर सकूँ, उनसे फंडिंग ले सकूँ, वॉट नॉट, राइट. सो उन्होंने इंटरव्यूज लिए जो वहाँ पे वो लोग शार्क टैंक में जा चुके हैं जिनको फंडिंग मिली या नहीं मिली उसके बेस पे. सो दैट इज देयर सैंपल प्ले. उनसे इंटरव्यूज लिए. दे कुड ओनली हैव 4 इंटरव्यूज, ठीक है, विद लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड दीज आर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट लिटरेचर पीपल जिनसे वो बात करना चाहेंगे एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने जो 4 इंटरव्यूज लिए उन इंटरव्यूज को हमने कोड किया पहले, राइट. एंड देन उसमें से थीम्स निकाली, उसमें से 3 प्राइमरी थीम्स निकल के आई कि वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है, राइट. सो देन वी हैव सो हम कैसे करते हैं ये, अभी मेरे पास स्टेटमेंट्स है, राइट. तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं इंटरव्यू में से वो कहती है मेंस. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कि मैटरनिटी केयर, मेंस मैटरनिटी या मेंस इन्वॉल्वमेंट इन मैटरनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे मैटरनिटी लीव्स होती है पर पैटर्निटी लीव होती है, राइट. पैटर्निटी लीव इज लिमिटेड, राइट, फॉर 10 days, दैट मीन डॉक्टर्स, राइट. तो क्यों नहीं, मेंस की इम्पोर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इज नॉट देयर, राइट. सो दिस इज अ रिसर्च इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो उसमें क्या किया गया, उनका कितना रोल होता है, उनका उनके ऊपर वर्कलोड कितना बढ़ता है, उनके ऊपर पार्टिसिपेंट का एक्नॉलेजमेंट, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, एवरीथिंग व्हाटएवर, राइट. कल्चर स्पेसिफिक जेंडर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रेगनेंसी आउटसाइड वेडलॉक, फियर ऑफ HIV टेस्टिंग, प्रिकॉशनरी फैमिली. सो दीज आर द थीम्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय दिस स्टेटमेंट्स. और उसके हिसाब से एक वेरिएबल निकालना है. जैसे अगर मैं इफ यू रिमेंबर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, दिस इज इंडक्टिव, बहुत सारी चीज़ों से मैंने छोटा किया था, ठीक है, जिसमें से मैंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए. वहाँ पे तो हमारे पास क्वांटिटेटिव में तो हमारे पास लिटरेचर है जो बता देता है ये इसको इफेक्ट करेगा. यहाँ पे मेरे को खुद इवैल्यूएट करना है कि बात क्या करना चाहते हैं, सबका एक ट्विस्ट क्या है, समरी क्या है. दैट इज वेरी माइंड यू, क्वालिटेटिव इज टफेस्ट दैट क्वांटिटेटिव और मोर रिलायबल इज. The more the risk, the higher the return is, right? तो हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस भी निकल के आएगा, इंसाइट भी अच्छा निकल के आएगा, राइट. तो क्वालिटेटिव हमें ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स देता है और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, राइट. सो दिस इज थीमेटिक एनालिसिस अप्रोच. देन वी हैव नरेटिव एनालिसिस. नरेटिव एनालिसिस के भी 2 टाइप्स हैं, वन इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. सो दिस इज द थीम हियर, टुडेज थीम समहाउ. तो इंडक्टिव जो है हमारा ब्रेकअप हम करते हैं, जो लोगों ने बोला उसको हम फिर ब्रेक कर रहे हैं और उसमें से नरेटिव डेवलप कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि शार्क टैंक 4 इंटरव्यू ले गए, उसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाए, उसमें से नरेटिव निकाला कि ये 3 चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें बेनिफिट आता है. डिडक्टिव अप्रोच है कि मैं बोल रही हूँ कि मोटिवेट करता है और मुझे इन्फ्लुएंस करता है, कंटेक्स्ट टू व्यूअरशिप बढ़ाता है, एक शार्क टैंक यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है और मल्टीपल चीज़ें. सो और उससे मैं फिर नरेशन और कर रही हूँ, राइट. सो उससे मैं कंसेप्ट और बढ़ा रही हूँ, ये स्टोरी को लेकर, ये स्टोरी, राइट. देन वी हैव डिस्कोर्स थ्योरी. डिस्कोर्स थ्योरी इज मोर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, इट इज मोर रिलेटेड टू लैंग्वेज रिसर्च. यहाँ पे 2 रिसर्चेज है, लैंग्वेज एंड न्यूज़ अप्रोच एंड सोशल पॉलिटिकल, राइट. इसमें लगभग चलता है कि आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट, इस बारे में बात की जा रही है, देन डेवलप कर सकते हैं. एंड उसमें से फिर हम स्टेटमेंट्स खुद फॉर्म करते हैं. हैव यू ऑल हर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट? जैसे हो सकता है किसी चीज़ के बारे में नहीं बात होती, आपके पास में उसका जैसे मैंने अपनी रिसर्च में डीमोनेटाइजेशन का स्किल डेवलप किया. Then I started with the topic. It was IT-enabled banking services. I wanted to identify if there is a theory called technology hedging. तो अगर ऑप्टिमिज्म है, अगर उसमें 4 वेरिएबल्स हैं, ऑप्टिमिज्म,
इनोवेटिवनेस, इनसिक्योरिटी एंड डिस्कम्फर्ट, ये मिला के अगर है तो इंटेंशन मिलता है और उससे फिर एक्चुअली मिलता है। बट वाइल आई वॉज डूइंग माई PhD, आई गॉट enrolled in 2020 और हमारा 2018 में 16 में डिमोनेटाइजेशन आ गया, 16 या 17 एग्जैक्टली नंबर। तो मुझे कहा गया कि अब तो ये ज़रूरत बन चुका है, तो अभी क्या बात कर रहे हो, ये सब चाहे मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे को नहीं यूज़ करना है तो भी मुझे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास कैश नहीं, राइट। सो आई हैड टू इंट्रोड्यूस अ स्केल। तो मैं वी कैरिड आउट रिसर्च कि डिमोनेटाइजेशन से किस किस चीज़ को हेल्प हो रही है। इट वॉज इज इट मेकिंग अ कैशलेस इकोनॉमी और नॉट। तो उसमें हमने मल्टीपल क्राइटेरिया लिए, उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी दिया क्या ये डिजिटल बना रहा है हमें या नहीं। तो जो वो 10 स्टेटमेंट्स बनाई वो फिर मैंने अपने थीसिस में डिमोनेटाइजेशन को मैंने बनाया डिजिटल पुश टू मीडिएटर बनाया और उसको इंटेंशन और एक्चुअल यूसेज, अगर डिजिटल पुश आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो एक्चुअल यूसेज बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह से वी हैड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल बिकॉज ऑफ new upcoming in the society, right? So based upon that you may create a theory as well in a way, right? आपने एक स्किल डेवलप किया, उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी रेडीनेस है और एक पुश मिलता है तो इट विल ऑलवेज। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ ये पुश ज़रूरी नहीं है कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, ये पुश कैशबैक भी हो सकता है, राइट। अगर मेरे को पता है कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्ट करूँ, जैसे डेबिट कार्ड से पहले भी होता था, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते थे, हमें आज भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो हम कोई कमोडिटी खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैशबैक मिलता है UPI ऐप्स पे मिलता था, राइट। सो उसकी वजह से मैं ज़्यादा UPI यूज़ करती हूँ, राइट। सो इट कैन क्रिएट अ theory in itself as well, right? So you can of course have your patent theory as well if you develop it. So that is nothing but the last of the session, the technique of the session, which is now theory analysis. So the crisp is we need to find meaningful patterns. हमारा डेटा हमें कब पता है what does it is mean, what is it speaking about, how it is responding to। मैंने तो सोचा था माइंड में कि वो एक्चुअली से ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो मुझे पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा फ्रेमवर्क ऑफ अ थ्योरी, जो मैंने थ्योरी कही थी वो सच में काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। हाउ डू वी कनेक्ट द डॉट्स, वी नीड टू फाइंड पैटर्न्स। डेटा एनालिसिस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वी नीड टू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स। मीनिंगफुल पैटर्न्स मतलब say for example there's a meme as well which I show in my business analysis classes as well कि अब जैसे कहा जाता है कि आपकी यूसेज ट्रैक होती है, राइट। तो अगर लाइक किड्स हैव योर सो अगर वो रिकमेंडेशन मॉडल हमारे सैंटा गिफ्ट्स में रिकमेंड हो जाए तो हम लोग देखते हैं और वैसा हमें सैंटा गिफ्ट दे, सो इट विल बी वेरी मच डिफरेंट, राइट। अब कौन सा डेटा लेना है, हो सकता है मैंने बाई चांस किसी ने मुझे एक वीडियो रील्स शेयर करी थी, मैंने वो देखी, राइट। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट। सो दी सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर हमें ये देखना है कि कौन सा रेलिवेंट भी है डेटा, राइट। उसने बोल तो दिया कि मैं इनसिक्योर हूँ क्योंकि आपने पूछा था इसलिए बोल दिया था इनसिक्योर, हो सकता है उसके माइंड में नहीं था कि इनसिक्योर, राइट। सो यू नीड टू फाइंड आउट मीनिंगफुल पैटर्न। हो सकता है जो आपने सब चीज़ें पूछी है उसके लिए रेलिवेंट है। सो प्रैक्टिकली क्या है, we have to work very hard, in short, right? We need to reflect, we need to think, we need to discuss with others, and that could need very many hours of your interviews and everything. But when we know we are done, ठीक है, जब हमें लगेगा कि हाँ कुछ नया निकल के आया है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी निकल के आया है। अब जैसे कि मैंने बोला था 4 वेरिएबल्स थे, राइट। पर मेरी रिसर्च में जो नेगेटिव वाले थे, डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी था, वो आपस में क्लब हो गए, फैक्टर एनालिसिस ने उसने क्लब कर दिया, राइट। सो आई हैड टू गिव अ न्यू नेम टू इट, व्हिच इज इनहिबिटर्स, राइट। तो मेरी थ्योरी कहती है टेक्नोलॉजी रेडीनेस बनता है इनहिबिटर्स, ऑप्टिमिज्म और इनहिबिटर्स, डिमोनेटाइजेशन आप डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी एक ही बनती है। चाहे मेरे पास में इनसिक्योरिटी में मेरे को लगता है पता नहीं सामने वाले पर कैसे सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं पता, राइट। डिस्कम्फर्ट में मेरे को ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी है, राइट, बट आई हैव टू। तो इनोवेशन ही
कॉन्ट्रडिक्टरी है थ्योरी से। अब मेरे को दिक्कत आ रही थी यार, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, अलग अलग दे रहा है, फैक्टर एनालिसिस में बार बार करती हूँ वो अलग अलग दे रहा है, अच्छी बात है वो अलग दे रहा है, दैट इज अ न्यू माइंडेड, राइट? सो यू हैव फाउंड अ कॉन्ट्रडिक्शन विद द थ्योरी, थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपको थोड़ी चीजें समझ में आने लगी कि हाँ ये वेरिएबल इफेक्ट करेगा, नहीं ये वेरिएबल, व्हाई यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। डेटा रिफ्लेक्ट सम व्हाट इज इन द लिटरेचर। इस बंदे ने भी यही बात करी कि मेरा एनालिसिस बता रहा है और थोड़ा इसमें से डेटा एनालिसिस ऑफ व्हाट इज इन द लिटरेचर, वो डेटा नहीं मिल रहा, उस पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ सकती लोगों से, राइट? सो व्हेन यू थिंक योर ग्रैपल स्ट्रगल बीइंग अनकंफर्टेबल, आस्क दैट बहुत टाइम तक लंबा खिंच गया है, मतलब आप सही डायरेक्शन में। So with this I learned that analysis is just not the description, but you need to summarize, visualize, compare, Hello. and find meaning. Hello. Thank you. And this last slide is dedicated to my guide, Anupma Rajesh, for a practical. So she is a true believer of turtle. और वो बोलती है small steps so first that will go long. Hello. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, अच्छा, I have a बताना है? confusion between a cohort analysis and एक मिनट। cluster analysis. Ma'am. I think both are same. For me, it is getting like the same. Can you? Cohort is more of, मैं उसमें क्लस्टर नहीं कर रही हूँ, मैं उनके यूसेजेस को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ एक सही टाइम पे कितने लोगों ने बात करी थी, एक सेम काइंड ऑफ काम किया था। क्लस्टर भी यही कह रहा है, पर वो विद टाइम चेंज हो रहा है। कोहॉर्ट में वो हमें पैटर्न देखना पड़ता है, हेलो। वो एक पीरियड ऑफ टाइम 2969 कोहॉर्ट। क्लस्टर मैंने एक टाइम पे डेटा कलेक्ट कर लिया और उसके उनका जो यूसेज पैटर्न था उसके हिसाब से क्लस्टर। कोहॉर्ट इज पैटर्न, जो हमारे आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स कर रहे हैं वो कोहॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। पर अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूँ तो मैंने एक टाइम पे रिसर्च करी, उस टाइम के हिसाब से ही क्लस्टर थे, तो हो सकता है आज की डेट में वो टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं। Okay, so anybody else have any query? Well, ma'am, you described so well. It is a little lengthy session, but it is very wonderful. And still, if anyone have any query in your mind, so you can ask directly to the ma'am. This session is open for all now. I think there is no any query, ma'am. You describe very well, ma'am, and thank you so much, ma'am, to give your valuable time and a very wonderful presentation here. And I heartily thanks you on behalf of both of organization to you, ma'am. Thank you once again, and thanks to all the participants for being with us. Thanks a lot, ma'am. Thank you everyone, thank you. I hope you guys learned and I could justify the long, the very well vast topic in this 1 hour period. Yes. And this session I recorded, so I will upload this video on our YouTube channel and provide the link also. Do give me the feedback as well. I'm very interested in feedback. Thank you so much, ma'am, once again. Thank you. Bye bye. Right.